Hello little champions, welcome to your favorite English learning. In this video we shall learn part 2 of the Great Hero chapter. In part 1 we had learned a couple of stories related to Mahatma Gandhi. In this part again we shall learn a couple of amazing stories related to Mahatma Gandhi. So without wasting any time, let's begin with it. Okay students, so let's begin with part 2 of Unit 8, The Great Hero. We shall continue our learning of Activity 6, which is on page number 71. When Gandhiji finished his story, Vallabhbhai Patel said he too had a story to tell. जब गांधी जी ने अपनी कहानी कहकर पूरी कर दी, तब वल्लभभाई पटेल ने कहा कि मेरे पास भी एक कहानी है कहने के लिए. One day, a baniya found a snake in his house. एक समय की बात है, एक बनिए को, बनिया मतलब ट्रेडर, उसे अपने घर में एक सांप मिला. He couldn't find anyone to kill it for him and hadn't the courage to kill it himself. उसे आसपास ऐसा कोई नहीं मिला जो उस सांप को मार सकता, और उसके पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस सांप को खुद मार सकता. Besides, he hated killing any living creature. और इसके साथ उसे किसी भी प्राणी की जान लेना पसंद नहीं था. So he covered the snake with a pot and left it there. इसलिए उसने क्या किया? उसने एक मटके से उस सांप को कवर कर दिया और उसे वहीं छोड़ दिया अपने किचन में. As luck would have it, that night some thieves broke into the baniya's house. और जैसा कि भाग्य में लिखा हुआ था, उस रात कुछ चोर बनिए के घर में घुस आए. They entered the kitchen and saw the overturned pot. वे उसके किचन में आ गए और उन्होंने उस उल्टे पड़े हुए मटके को देखा. They thought, the baniya has hidden something valuable here. हाँ, उन्होंने सोचा कि देखो बनिए ने यहाँ कुछ बड़ा कीमती वैल्यूएबल छुपा के रखा है. As they lifted the pot, the snake stung. All of them ran for their lives. और जैसे ही उन्होंने पॉट उठाया, उस सांप ने उन्हें डस लिया और वे सारे ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए. So it was a wonderful story which Sardar Vallabhbhai Patel told Mahatma Gandhi. Now let's move to activity 8. And here again we'll be learning a nice incident from Mahatma Gandhi's life. Children loved visiting Gandhi ji. बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत पसंद था क्योंकि वे उन्हें ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताते थे. A little boy who was there one day was greatly distressed to see the way Gandhi ji was dressed. एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का जब गांधी जी से मिलने आया तो वो गांधी जी को देखकर बड़ा ही डिस्ट्रेस्ड हो गया. डिस्ट्रेस मीन्स टू बी वरीड, मतलब चिंतित हो गया. किस लिए? क्योंकि गांधी जी ने कपड़े ही इस तरह के पहने हुए थे. Such a great man, yet he doesn't even wear a shirt, he wondered. इतने महान आदमी और एक शर्ट भी नहीं पहनते हैं, वो सोचने लगा. Why don't you wear a kurta, Gandhi ji? The little boy couldn't help asking him finally. जब उस छोटे बच्चे से रहा नहीं गया तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया, गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो? Where's the money, son? Gandhiji asked gently. I am very poor. I can't afford a kurta. गांधी जी ने उस बच्चे से बड़े ही प्रेम से कहा कि पैसे कहाँ हैं बेटा? मैं बड़ा ही गरीब हूँ. I am very poor. मैं कुर्ता खरीद नहीं सकता हूँ. The boy's heart was filled with pity. और यह सुनकर उस बच्चे का दिल गांधी जी के लिए दया से भर गया. My mother sews well, he said. She makes all my clothes. I'll ask her to sew a kurta for you. उस बच्चे ने कहा कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिलाई करती है, मेरे सारे कपड़े वही सिलती हैं. मैं उनसे कहूंगा कि वो आपके लिए भी एक कुर्ता सिल दें. How many kurtas can your mother make? गांधी जी asked. गांधी जी ने उस बच्चे से पूछा कि आपकी मम्मी कितने कुर्ते सिल सकती हैं मेरे लिए? How many do you need? asked the boy. 1, 2, 3. She'll make as many as you want. आपको कितने कुर्ते चाहिए ये आप बताइए. 1, 2, 3. आपको जितने भी कुर्ते चाहिए उतने मेरी मम्मी आपके लिए सिल देंगी, ऐसा उस बच्चे ने गांधी जी से कहा.
Gandhiji thought for a moment. Then he said, "But I am not alone, son. It wouldn't be right for me to be the only one to wear a kurta." गांधी जी ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर बाद में कहा, पर बेटे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ और ये सही भी नहीं होगा अगर मैं अकेला यहाँ कुर्ता पहनकर घूमूं। How many kurtas do you need? The boy persisted. वो लड़का अपने सवाल पर अड़ा रहा और फिर से उसने पूछा, आप बताइए ना, आपको कितने कुर्ते चाहिए? I'll ask my mother to make as many as you want. Just tell me how many you need. मैं अपनी माँ से कहूंगा, आपको जितने कुर्ते चाहिए वो उतने कुर्ते बना देंगी आपके लिए। आप खाली मुझे बताइए कि कितने कुर्ते आपको चाहिए। I have a very large family, son. I have 40 crore brothers and sisters, गांधी जी explained. गांधी जी ने उस बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे परिवार में 40 करोड़ ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, भाई बहन हैं। Till every one of them has no kurta to wear, how can I wear one? जब तक उन सभी के पास कुर्ता नहीं होगा पहनने के लिए, तब तक मैं एक कुर्ता कैसे पहन सकता हूं? Tell me, can your mother make kurtas for all of them? बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी उन सभी के लिए कुर्ता बना देंगी? At this question, the boy became very thoughtful. 40 crore brothers and sisters. गांधी जी was right. और जैसे ही गांधी जी ने उस बच्चे से यह सवाल पूछा तो वो सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन। गांधी जी अपनी जगह पर सही थे। उस समय भारत की आबादी 40 करोड़ थी, यानी 40 करोड़ थी, और गांधी जी की नजर में सारे भारतवासी उनके भाई बहन के समान थे। Till every one of them had no kurta to wear, how could he wear one himself? और जब तक उन सभी के पास कुर्ता नहीं होता पहनने के लिए, तब तक गांधी जी अपने लिए कुर्ता कैसे बनवा सकते थे? After all, the entire nation was Gandhiji's family and he was the head of that family. आखिर में ये पूरा राष्ट्र गांधी जी के परिवार की तरह था और वे उस परिवार के मुखिया थे, प्रधान थे। He was their friend and companion. वे उनके मित्र थे, साथी थे। What use would one kurta be to him? और उनके लिए एक कुर्ता भला किस काम का होता, बताइए। Now from this small incident, we can easily come to know that Gandhiji considered the whole nation as his family and really cared for everyone in this country. Now let's move to the next learning of ours. We shall learn a nice composition on the topic My Favorite National Hero. In this composition, I have used the example of my favorite national hero, that is Chandrasekhar Azad ji. If your favorite national hero is also Chandrasekhar Azad, you may write about him, or you may use ideas from this composition and write about your own favorite national hero. Okay children, so let's begin. Chandrasekhar Azad was born on 23rd July 1906 in Bhabra, Madhya Pradesh. चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई को 1906 के साल में भाबरा नाम के गांव में, जो मध्य प्रदेश में है, वहां हुआ था। In 1920, Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement and he joined it. 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तब उन्होंने उसमें भाग लिया था। He was just 14 years old at that time. उस समय पर वे केवल 14 साल के थे। इमेजिन करो कितने छोटे थे वे, और इतनी छोटी सी उम्र में उनको देश प्रेम कितना ज्यादा था। He was arrested by the Britishers and was sentenced to 15 whiplashes. उन्हें ब्रिटिशर्स ने उस समय अरेस्ट कर लिया था, हिरासत में ले लिया था, और फिर बाद में जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उनसे सवाल पूछे। पहला सवाल था, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, आजाद। दूसरा सवाल था कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। और तीसरा सवाल था कि तुम रहते कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, जेल में। ये सारे जवाब सुनकर जज बौखला गया और उसने
उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी। After this incident, he assumed the title of Azad and became famous as Chandrasekhar Azad. और इस घटना के बाद उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया और वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। In 1922, he joined the Hindustan Republican Association. 1922 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। अब ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक ऐसा संगठन था जो उनके ही जैसे महान देशभक्त नेताओं से भरा हुआ था, जैसे कि शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी। In 1925, he took part in the काकोरी ट्रेन रॉबरी। 1925 में 1925 में उन्होंने काकोरी ट्रेन की लूट में भाग लिया था। अब ये काकोरी ट्रेन में अंग्रेजों का खजाना जा रहा था। उस खजाने को इसलिए लूटा गया था जिससे उस पैसे से वे हथियार खरीद सकें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। On 27th February 1931, he arranged a meeting with revolutionaries at Allahabad's Alfred Park. 27 फरवरी 1931 में उन्होंने दूसरे क्रांतिकारी नेताओं के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मीटिंग आयोजित की। द ब्रिटिश पुलिस केम टू नो अबाउट हिज लोकेशन, और ब्रिटिश पुलिस जो उनके पीछे सालों से लगी हुई थी उसको इस बात का पता चल गया। सो दे सराउंडेड द पार्क, इसलिए उन्होंने आकर उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। He fought with bravery, but seeing no other way to escape, he shot himself and fulfilled his pledge of not being caught alive. उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ब्रिटिश ऑफिसर्स का सामना किया और कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स मार गिराए। फिर अंत में जब उनके पास एक ही गोली बाकी थी, उस गोली से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उन्होंने जो कसम खाई थी कि ब्रिटिशर्स द्वारा वो कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, उस कसम को नहीं टूटने दिया। He lived only for 25 years, but the passion with which he fought for the freedom of our motherland will keep inspiring us forever. वे सिर्फ 25 साल की उम्र में शहीद हो गए, पर जिस जज्बे के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस देशभक्ति के साथ उन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। So then, dear students, here we complete our learning of today. Really, there is so much to learn from our great leaders' lives. Now, as usual, I have attached a nice assignment for you to complete. Complete the same in very good handwriting and send its clear images on my WhatsApp number. Until we meet again, take care of yourselves. Jai Hind.